अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 6 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला उसके घर खैर व बरकत करे तो उसको चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करे। और अब सुर्खियां। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया पहुंचे बेंगलुरु के इसरो सेंटर। चंद्रयान की कामयाबी पर चेयरमैन सोमनाथ को दी मुबारकबाद। 26 अगस्त को कांग्रेस काशीवाड़ा में SC/ST डिक्लेरेशन। सदर कुल हिंद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। जगनन्ना सुरक्षा के तहत महरूम अफराद इस्तीफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल। 2.5 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन के खातों में जगन ने रकम की मुंतकिल। हिमाचल प्रदेश में जमीन के तोदे खिसकने के वाकयात, कई इमारतें हुई जमींदोज। और अब तफसील। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 ने कामयाबी के साथ अपने कदम जमा दिए हैं और अब CH3 रोवर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। रोवर ने अपनी तहकीक भी शुरू कर दी है। इसरो ने इस बात की ट्वीट के जरिए तहकीक की है कि इसरो ने बताया कि मजीद तफसीलात का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पास 2 आलात हैं। दोनों का ताल्लुक चांद पर अंसरी साख्त के नताइज के साथ साथ कीमियाई मरकबात से है। मजीद ये है कि ये सतह पर घूमने फिरने का काम भी करेगा। रोबोटिक रास्ते की मंसूबाबंदी की मशक भी करेंगे, जो मुस्तकबिल की तलाश के लिए अहम है। See, any failure is such a great teacher. The last failure of Chandrayaan 2 gave us a lot of inputs in terms of its data and what went wrong, and we clearly identified. So those lessons are the first thing that we learned, and afterwards we looked at what all can go wrong further, and we strengthened all of them so that the failure won't happen this time. So essentially, in all the space missions, failures are important element for achieving success. The very first time success doesn't mean it is a success. We all realize that the second time it can fail. So once it fails, a lot of data comes and a lot of information comes, and even if succeeds one time, there are possibilities of failures in the second time. So looking at many other rocket launches, you will understand that. So we are very tuned to understanding failures and make corrective actions. We have gone closer to South Pole, which is 70 degrees almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। सिद्धारामैया और नायब वजीर आला डी शिव कुमार ने बेंगलुरु में वाक़ई इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचकर एस सोमनाथ से मुलाकात की और तहनीत पेश की और चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। Many years they worked. Yes. They were at it. Yes. Right. Around the clock they have worked. Yes. Many scientists they have worked. They are involved in that. Nearly 500 scientists involved in this. Totally more than 1,000 people are involved in the country. So when would the state From Bangalore itself, 500 people are involved. So when will the government felicitate them? Then I told Prabhakar to coordinate with the chairman of the ISRO only after 2nd of September. So they will be felicitated in Vidhan Soda? Yes, Vidhan Soda, Banquet Hall. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी दौरे से फौरी वापसी के बाद इसरो के साइंसदानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे।
मोदी जो जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद यूनान के दौरे पर हैं, वो 26 अगस्त को यूनान से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और 7 बजे शाम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और साइंसदानों से मुलाकात करके चंद्रयान 3 की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे। हिंदुस्तान के चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी ने एक तारीख रकम की है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया ने चांद मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों की सताइश की। बैनुल-अक़वामी और कौमी अखबारों ने हिंदुस्तान की चांद मिशन की कामयाबी की खबर को शह सुर्खियों में शाये किया है। चांद मिशन की कामयाबी पर हिंदुस्तानी अवाम ने भी खुशी और मसरत का इजहार किया और खलाई तहकीक में हिंदुस्तान की मजीद पेशरफ्त के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पिछले की गवर्नमेंट ने भी इतना ही सपोर्ट जो शुरू किया होगा, तब वैज्ञानिकों को विक्रम साराभाई और डॉक्टर बाबा, उसको जितना भी धन्यवाद दिए वो कम है। ये जो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा हो गया है। ये सब जो आगे भी जो हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने चंद्र पर जो जगह में उतरे हैं, वो तो एकदम कोई अनबिलीवेबल है। जनूबी अफ्रीका में मुनाकिदा ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मौजूदगी में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामफोसा ने अहम ऐलान किया है। ब्रिक्स में 6 नए ममालिक को शामिल करने का फैसला किया गया, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटाइन और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। हिंदुस्तान ने इस फैसले की हिमायत की है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इससे दुनिया को ताकत मिलेगी। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आंध्र प्रदेश में हर अहल शख्स तक फलाही स्कीमात की रसाई हुकूमत का मकसद है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई मुस्तहिक अगर किसी भी वजह से फलाही स्कीमात से महरूम हो गया है तो वो जगनन्ना सुरक्षा प्रोग्राम के तहत दोबारा दरख्वास्त देकर मुतालिका फलाही स्कीमात से फ़ायदा उठा सकता है। आज उन्होंने दिसंबर 2022 ता जुलाई 2023 ऐसे ही 2,62,169 अफराद के खातों में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत 216 करोड़ 34 लाख रुपये नकद रकम मुंतकिल की। जगन ने वज़ीर आला कैंप ऑफिस से बटन दबाकर मुस्तहिकीन को रास्त खातों में रकम फराहम की। ఏ పథకంలో అయినా కూడా అర్హత ఉండి ఏ కారణం చేతైనా కూడా అందాల్సిన ఆ మంచి అందకపోయిన పరిస్థితులు ఎవరికైనా ఉంటే అలాంటి వారికి న్యాయం చేయడానికి, అలాంటి వారికి ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ బెనిఫిషరీస్కు మంచి చేయడం కోసం మరొక్కసారి మళ్ళీ వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చి, ఏ కారణం చేతైనా కూడా మీరు ఆ రోజు మీకు అందకపోయిందంటే పర్వాలేదు, కంగారు పడాల్సిన పని లేదు, మళ్ళీ వెంటనే మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. పథకం వచ్చిన తర్వాత 1 నెల దాకా కూడా మీకు టైం ఇస్తా ఉన్నాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆ నెల లోపల మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న పిమ్మట మీకు అర్హత ఉండి
ఏ కారణం చేతైనా కూడా రాకపోయిందంటే మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేయించి అవన్నీ కూడా రిపేర్లు చేయించి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చేట్టుగా కూడా ప్రభుత్వం చెయ్యి పట్టుకొని మీకు తోడుగా ఉండి నడిపించే కార్యక్రమం చేస్తుంది అని ఏదైతే చేస్తా ఉన్నామో ఆ పద్ధతిలో ప్రకారం ఈరోజు నిజంగా ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ బెనిఫిషరీస్కు మంచి చేసే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. वजीर आला केसीआर ने आज तेलंगाना काबीना में तोसी करते हुए डॉक्टर पट्टनम महेंद्र रेड्डी को काबीना में शामिल कर लिया है। राजभवन में मुनाकिदा सादा तकरीब में गवर्नर सौंदरा राजन ने महेंद्र रेड्डी को वजारती ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर समेत वज़रा व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। 26 अगस्त को चेवरला में मुनाकिद होने वाली SC/ST डिक्लेरेशन सभा को कामयाब बनाने की कांग्रेस लीडर मानिक राव ठाकरे ने अपील की है। उन्होंने बताया कि इस डिक्लेरेशन तकरीब में AICC मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करने वाले हैं। ठाकरे ने कहा कि केसीआर BC/SC और ST तबकात को कम नज़र से देखते हैं। अवाम और वादों को फरामोश करने वाली BRS पार्टी को अवाम मुस्तरद कर दें, कांग्रेस MP उत्तम कुमार रेड्डी ने ये कॉल दी है। आने वाले अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन और 30 नवंबर को इंतखाबात मुनाकिद किए जाने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी राज तबका और मुसलमानों की BRS ने तौहीन की है। ముదిరాజ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక్క ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కూడా ప్రకటించిన టిఆర్ఎస్ పార్టీకి నా ముదిరాజ్ అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లాలి మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అయితే అవమానపరిచిండ్రో మీరు టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలకి అదే బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. టిఆర్ఎస్ పార్టీని తరిమి కొట్టాలని చెప్పి మీకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మొత్తం 119లో 3 ముస్లిం క్యాండిడేట్స్ ముదిరాజులని ముస్లింలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ అవమానపరిచిన విషయం నేను యావత్ ప్రజానీకాన్ని దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. 10 ఏళ్ళ అధికారం తర్వాత కూడా ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతని నిరుద్యోగ సమస్యని విస్మరించిన ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పిన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. जंगांव BRS में सियासी गर्मी बढ़ गई है। मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन को MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी की जानिब से लालच देकर अपनी जानिब राग़िब करने के MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी के ऑडियो टेप ने सियासी हलकों में सनसनी मचा दी है। पोचमपल्ली का ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जंगांव की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल पर तशवीश जाहिर करने वाले MLC पोचमपल्ली ने कोंडामुरली के जीत के बाद कभी नजर नहीं आए। उन्होंने अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहने का ऐलान किया है। हनुमाकुंडा जिले में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब वरंगल वेस्ट के MLA विजय भास्कर के घर की बीजेपी कारकुनों ने घिराव की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी और BRS कारकुनों में टकराव हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। दोनों ग्रुपों को पुलिस ने वहां से मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर चंद अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। CPI लीडर सांबा शिवराव ने वजीर आला केसीआर को एक मौका परस्त लीडर करार देते हुए कहा कि कम्युनिस्ट जमातें किसी इत्तेहाद के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे और BRS हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने पेश करेंगे। मछली प्रसाद तकसीम करने वाले बतनी हरिनाथ गौड़ चल बसे। हैदराबाद की भुलकपुर की पद्माशाली कॉलोनी में उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली। पसमंदगान में बीवी, 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। पुराने शहर के इलाके दूध बाउली के रहने वाले हरिनाथ के 4 भाई थे। 1983 में बतनी ब्रदर्स ने पुराने शहर से भुलकपुर का रुख किया। बतनी ब्रदर्स कई सालों से मिरक के मौके पर मछली में प्रसाद खिलाते आ रहे हैं। खांसी दमे के मरीज इस प्रसाद से इस्तेफादा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हरिनाथ गौड़ की आखिरी रसूमात जुमा को अदा की जा रही हैं।
आने वाले इंतखाबात में 175 सीटों पर कामयाबी के लिए कारकुन काम करें। इलाकाई पार्टी कोऑर्डिनेटर वाईवी सुब्बा रेड्डी ने ये कॉल दी है। विशाखा में वायएसआर कांग्रेस के सदर कोलागुरु को उन्होंने तैनियत पेश की। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों में पहली बार एक मछेरे को राज्यसभा के लिए नामजद करने का सेहरा जगन हुकूमत को जाता है। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि जगन ने मछेरों की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने से कई मकानात जमींदोज हो गए। आनंदफाना में कई मंजिलें जमींदोज हो गईं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव के कामों के लिए तैनात किया गया है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया पहुंचे बेंगलुरु के इसरो सेंटर। चंद्रयान की कामयाबी पर चेयरमैन सोमनाथ को दी मुबारकबाद। 26 अगस्त को कांग्रेस का चेवेला में SC/ST डिक्लेरेशन। सदर कुल हिंद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। जगनन्ना सुरक्षा के तहत महरूम अफराद इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल। 2.5 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन के खातों में जगन ने रकम की मुंतकिल। हिमाचल प्रदेश में जमीन के तोदे खिसकने के वाकयात, कई इमारतें हुई जमींदोज। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।